Good evening to everybody, my dear children, my friends. मैं DN Sindhu. You are watching my channel Perfect English of DN Sindhu. Previously or previous in class, you have been taught about the narrations and rules of the narrations. Now today's topics is that last topics, rules of narration, which are going to now you learn. You see the very important this chapter, which I am going to tell you, which I am going to you just means you very important, or you can say without knowing this rule, it is not possible to solve or to change the narration direct to indirect. What is that one? Now you see. Rule number 8. Now you see the relation. It was told yesterday class to tell you about the relation when you are going to change from direct to indirect. Okay? What is the relation? Now you see, this is the reporting verb and it is reporting speech. In every sentence, in a reporting verb or also in a reporting speech, there are subject, verb and object. Also in reporting speech, subject, verb plus object. So this form is in a direct form. When you are going to change, then what you will have to do it? How can you change? Very important. What is that? You see, the subject of the reporting speech may remain in first person, second person or third person. So suppose subject of the reporting speech in the first person, okay? First person. Subject of the reporting speech will remain in first person. When you are going to change from direct to indirect, then you put the subject of the reporting verb in place of subject. Means this is the relation. Suppose subject is in the first person, then you change direct to indirect. You will put the subject of the reporting verb in place of subject first. Second, when the subject of reporting speech in second person, okay? Second person, PR person. Then it will change, it will be changed object. Object will come in place of subject. When the subject will remain in second person, it will be related with the object of the reporting verb. So object will place or object will go in place of subject of reporting speech. Number 3, subject of the reporting speech is in third person. Third person. What will you have to do you? There will be no any changes. It will remain in its place. It remains
in its place as it is. ELAC, ELA, sorry, PLAC, as it is, as it is. अगर थर्ड पर्सन है तो वो कहीं चेंज नहीं हो, किसी से संबंध नहीं उसका रहेगा। सेकेंड पर्सन है सब्जेक्ट, तो उसका संबंध रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होगा। इसको हटा देंगे और इसको डाल देंगे। जब फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट तो उसको हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को वहां डाल देंगे। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है तो आप सभी जानते हैं, आई एंड वी। और सेकंड पर्सन में क्या आता है तो यू। और बाकी जो थर्ड पर्सन में है, नाम है, ही है, सी है, एक्स्ट्रा जो भी है वो थर्ड पर्सन है। तो ये हम जब चेंज करते हैं, इसको समझिए, बड़ी गौर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर लड़का चक्कर खा जाता है कि सर कैसे बदल गया। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन में रहता है तो उसको हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को उसके जगह में डाल देंगे, चाहे जो भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं। जब ये सेकंड पर्सन रहेगा सब्जेक्ट तो उसको हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को यहां डाल देंगे, खत्म। जब यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है, जैसे ही है, सी है ना, ही है, सी है, नाम है, जो भी है थर्ड पर्सन में, जब थर्ड पर्सन है तो इसको किसी से मतलब नहीं है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने जगह पर रहेगा। ये हमेशा कोई भी टेंस बनाएंगे आप, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, या अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, या इंपरेटिव हो या ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी सेंटेंस होगा, रिलेशन हमेशा यही चलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। ये नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। तो ये जो है प्रोनाउन यहीं पर काम करता है, यानी नॉमिनेटिव अगर यहां है तो इसके बदले नॉमिनेटिव ही आएगा। तो नॉमिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट की जगह होता है, यहां पर नॉमिनेटिव होता है। ओके, सब्जेक्ट जो होगा हमेशा नॉमिनेटिव प्रोनाउन होते हैं। रह गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। तो ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव सब्जेक्ट के बाद ही होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद ही पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसके बदले हम ऑब्जेक्टिव ही देंगे। अगर यहाँ पोजेसिव है तो इसको जब हटाएंगे तो उसके बदले हम पोजेसिव ही देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव की जगह पोजेसिव। और इसको तो बता ही दिया कि ये नॉमिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट रहता है, यहाँ जो भी रहेगा इसमें चला आएगा। ये रिलेशन, ये जो हमेशा हर टेंस और सेंटेंस के लिए लागू होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको बताया था ये रिलेशन है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिपोर्टिंग स्पीच का रिलेशन होगा। कब? जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तब ये याद रखना पड़ेगा। तो चलिए, आपको आज हमारा ये लास्ट रूल था, रूल ऑफ नरेशन का ये 8वां रूल था, जो आज आपका क्लास खत्म हो गया। यानी सारे रूल मैंने आपको बता दिए शुरू से अंत तक। तो इन सारे रूल्स को अगर याद रखते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए जीवन से इससे छुटकारा मिल जाएगा, यानी आप अच्छी तरह से सेंटेंस बना पाएंगे। अब इसके बाद में आपको एसर्टिव, उसके बाद इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का नरेशन मैं शुरुआत
शुरू करूंगा तब आप समझ में आएंगे कि ये रिलेशन का क्या क्या जरूरत है। तो छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देते हैं ताकि आप समझ सकते हैं। मान लीजिए राम सेड टू मी, ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। चलिए, ये एक सेंटेंस आपको दिया। नाउ यू कंसीडर, पहला चीज आपको सोचना होगा रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। तो ये सेंटेंस देखिए पास्ट टेंस में है, ओके, सेड है। तो जब ये पास्ट टेंस में रहेगा तो इधर का जो भी सेंटेंस है वो पास्ट में चला जाएगा, आपको मैंने पहले बताया था। अब आपको सोचना है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस किस टेंस में है। तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का वेरी सिंपल सेंटेंस है। तो सीधी बात है कि जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में चला जाएगा, तो पता है आपको। अब हम आपको रिलेशन दिखलाते हैं। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे राम टोल्ड भी लिख सकते हैं, सेड भी लिख सकते हैं। तो अगर टोल्ड लिखते हैं तो टू नहीं लगाएंगे, राम टोल्ड मी। और कनेक्टर से बताया था हम आपको, यहां पर दैट लगाएंगे, दैट से जोड़ दिया। चलिए इसका काम खत्म हो गया। राम टोल्ड मी दैट, या राम सेड टू मी दैट लगा दिया। अब विचार कीजिए ये कौन पर्सन है, सेकेंड है ना। तो चलिए सेकेंड पर्सन ये आया ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट में क्या है, यहां मी है। तो मी आपको बताया था कि ये मी का नॉमिनेटिव क्या होता है। तो आपको बताया था ना कि आई, ऑब्जेक्टिव में मी और पॉजिटिव में माई, बताया था आपको। तो अब आइए, इसका यू का रिलेशन ऑब्जेक्ट से है, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से है, और ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, ठीक है। तो यहां जो आएगा ये नॉमिनेटिव ही आएगा, जो भी आएगा या नॉमिनेटिव है, तो इसके बदले नॉमिनेटिव ही लाना है। तो अब आइए यहां पर मी है, इसका मी का नॉमिनेटिव क्या भाई, मी है ना ऑब्जेक्टिव, यहां पर मी है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव मी है। तो अब मी का नॉमिनेटिव चुनिए, क्या होगा, आई होगा। इसलिए मैंने क्या किया, सीधा यहां पर आई बैठा दिया। अब सेंटेंस को हम टेंस के बारे में सोचेंगे। ये पास्ट में है इसलिए भी पास्ट में जाएगा। तो आई के साथ अब हम लगाएंगे पास्ट टेंस में, क्या लगाएंगे, वाज लगा दिया, आई वाज, यहां तक बना। अब आइए जो आपको हम बताए थे कि यहाँ जो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव होता है उसको कैसे चेंज करेंगे। तो ये माई जो है वो पॉजिटिव है, देखिए यहाँ माई पॉजिटिव है और माई फर्स्ट पर्सन है, ओके। ये फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव, ये फर्स्ट पर्सन में है। तो इसका रिलेशन किससे है, फर्स्ट पर्सन का रिलेशन किससे है, फर्स्ट पर्सन का रिलेशन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से है, ओके। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ, राम का मतलब ही, लड़का है वो। चलिए ही, यहां पर ही हुआ। तो अब ये पॉजेसिव है तो यहां जो कुछ आएगा वो पॉजेसिव ही आएगा। तो ही का पॉजेसिव क्या होता है, देखिए ही, उसके बाद हिम और हिज, है ना, पॉजेसिव है, ही का पॉजेसिव ही हुआ। तो माई फर्स्ट पर्सन होने के नाते इसका रिलेशन सब्जेक्ट से है, रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट में क्या है, तो राम है, राम क्या है, लड़का है, इसलिए ही हुआ। तो ही का पॉजिटिव क्या होगा, देखिए ही, हिम, हिज, ये हिज है ना। अब आप माई को हटा दीजिए और यहां पर हिज लगा दीजिए, बन गया बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप। अब सेंटेंस कंप्लीट। राम टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। फिर से समझा देते हैं आपको। ये सेकंड पर्सन है,
इसलिए इसका संबंध ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है, तो मी का नॉमिनेटिव क्या हुआ? आई। आई बैठा दिया। चलिए, ये पास्ट में चला गया, वाज हो गया। अब यहाँ पर माई जो है फर्स्ट पर्सन का है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट पर्सन का रिलेशन किससे होता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में क्या है? ही। तो अब ही का पॉजिटिव क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव देखिए, ही का हिज है, इसलिए हमने यहाँ हिज बैठा दिया और बाकी को जोड़ दिया हिज फ्रेंड। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर अभी आपको समझाया, आपको हम बारी बारी से समझाएंगे डिटेल में। इन्हीं शब्दों के साथ आपका ये आज का जो है ये क्लास, रूल्स का क्लास खत्म हुआ। अब हम चैप्टर वाइज आपको शुरुआत करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त और मेरे स्टूडेंट्स, हम कुछ आपसे इसके अलावा एक्स्ट्रा बातचीत करना चाहते हैं। वो ये है कि देखिए, यूट्यूब में तो बहुत लोग पढ़ाते हैं पैसे के लिए, लेकिन मुझे पैसा कमाने का कोई इच्छा नहीं है। मैं पैसा कमाने के लिए ट्यूब में क्लास नहीं लेता हूँ। मैं अब जिंदगी के आखिरी पायदान में खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा कुछ बताया हुआ ये नॉलेज, जो एक्सपीरियंस है, आपके बीच रखें और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इसको सीखेंगे। आप लाइक करें या न करें, आप इसको शेयर करें या न करें, आप सब्सक्राइब करें या न करें, बट इट इज माय मिशन and goal and target of my best life to provide a good and proper and exact knowledge of English to the present situations of the students. Because of that, I know what kind of the tuition and what kind of schooling is being given in the schools. Because of that, I have got experience and I have given my service in so many schools. So I found that where there is a lackage, where there is a wantage, so I decided myself to give you or provide you the exact rules. So there are a lot of rules in the grammar. Before class I have explained to you, the book is in the mind and heart of the teacher, and the teachers that experience and their skillings, they want to put or infuse in the mind of the students. This is the relations, and I have found such type of experience and relations I am not seeing in the